So hello everybody, we start 1.3, the cop and the anthem. Icebreakers. Suppose you have gone to a place where the winter season is very severe. Discuss with your partner the ways in which you would protect yourself in the cold climate. So what are the different ways to protect from cold climate? You can wear gloves, you can wear sweaters, you can wear warm clothes, drink hot soups, take shelter in some warm place. Abroad and all there are like the way we have ACs, when it's very hot, there are heaters. Okay, when it's extremely cold, which will heat up the room. That's the first thing. Now next part. When you see a cop approaching, cop is a policeman, okay, cop, you feel either relieved or scared. So there is a relief when you see a policeman, or sometimes you're scared. Now what are the different situations? You'll feel relieved when you feel, oh, so there's somebody who's going to help me out now. And you're scared when you feel that you've done something wrong and there comes a policeman and I'm going to be caught. Okay, some three situations they have asked for. So relieved is when you're walking alone in a dark street and you are quite scared. But sometimes, late nights you're going back home alone and there's nobody on the road. It's a lonely, totally deserted area. And then you find a policeman or a cop coming. So somewhere you are relieved. Okay, because they are meant to protect people. Now there is a fight taking place near your house or something. Then you are relieved, oh, there comes a policeman. Now at least things will be sorted out. Or you find some suspicious people around you. So that is again a situation where you are relieved seeing a policeman. Now you are scared when, supposing you are riding a bike and you don't have a valid driving license or no helmet, or you have been involved in a fight. You are part of some quarrel or some fight, or you have broken a traffic signal. So there are these situations where you're scared. Now comes the third part. The motivating things that can change a person's life. So listening to an inspiring speech, reading motivational books, watching biopics of famous people, reading religious books or epics. Epics are Ramayana and Mahabharata and all. So if you go into the net and ask for motivational quotes, motivational images, the good morning that we send to people, most of them have, they motivate you. So you have, a nice day ahead. Like we say, have a nice day. When you read that early in the morning, you feel nice. It brings a smile immediately. Okay, so motivation is extremely important. But just reading and listening and watching and all will not help, because sometimes it inspires you for some time. It will motivate you for some time. But after that, what? So then comes your internal motivation. You have to keep motivating yourself. The situation today, you have to, don't wait for others to motivate you. You have a goal and you have to achieve that goal, and for that you need to work hard, isn't it? Let's see the next. So let's read about the person who has written this. O. Henry. William Sidney Porter, an American writer, is better known by his pen name. Pen name means what? They don't write their own name. Okay, when they're writing articles and all, they are more famous as, like this person is more famous as O. Henry. He was a voracious reader since childhood. He loved to read. He started a humorous weekly, The Rolling Stone. And when the venture failed, he joined the Houston Post as a reporter, columnist and an occasional cartoonist. The story, The Cop and the Anthem, is one of O. Henry's well-known stories.
To describe his style of writing, people have often used the term smile with tears, which implies his twisted way of thoughts and endings in almost every story. There's always an unexpected, end. There's a total twist. So you smile, but there are tears also. Okay, so it's like smile with tears. Now in this story, the main character Soapy is a vagabond. A vagabond कौन होता है? जो आवारा, इसे मीन्स कुछ जैसे कोई काम धंधा नहीं है, बस इधर उधर घूमते रहता है. And a person with criminal background. So criminal background means he has gone many times to jail. कुछ ना कोई चोरी कुछ किया है and then जेल में अंदर बाहर करते रहता है ये आदमी. Okay. He makes different plans to re-enter the prison as he has no shelter to protect himself from the severe winter. So, he stays in a place where it is extreme winter and he doesn't have a house. So there's a reason why he does all these small things so that he can land up in jail. So he knows कि चलो एक बार अगर जेल में चला गया तो टाइम टू टाइम खाना मिल जाता है, एक छत भी मिल जाती है. So he is relaxed. So he feels, I think that's the best way कि कुछ छोटा मोटा चोरी करो, कुछ करो and then fight, steal and then go to jail. Okay. So that is his way of living. Because he has no shelter. The winter is very severe. बहुत ज़्यादा है ठंड. Now the story ends in an unexpected way. O. Henry has depicted Soapy's futile attempts to get arrested in a very humorous vein. In the story, as you read, you will find that उन्होंने means बहुत try किया कि कोई पुलिस उनको पकड़ के ले जाए. So इसीलिए this poem is very humorous, very funny. Futile attempts means कुछ attempt try करना लेकिन पूरा व्यर्थ, कोई फायदा नहीं हुआ उसका. Futile. The Cop and the Anthem is about freedom and confinement. Freedom is being free, confinement is confined, कारावास जैसे होता है, चार दीवारी के अंदर बंद रहना जैसे. Initially, Soapy feels that there is freedom from miseries and worries in confinement prison. Means somewhere he feels कि normally we say confinement, prison, jail जाना means ऐसा लगता है oh God. But यहाँ पे इनको लगता है कि वो जो उसके जो मिजरीज है, उसके जो दर्द है या वरीज है, टेंशन है, उससे तो उसको छुटकारा मिलेगा. तो इन सोपी को जेल में जाना पसंद है क्योंकि उसको फ्रीडम मिल जाता है ये सब टेंशन से. द नोट्स ऑफ एंथम ट्रांसफॉर्म हिम फ्रॉम विदिन. फिर लास्ट में चलते चलते वो एक बार कहीं पे बैठा रहता है और वहां पे वो एक प्रेयर सुनता है. तो प्रेयर सुनने के बाद फिर उसको ऐसे लगता है नेशनल एंथम जैसे हमारा है जन गण मन. सो वो प्रेयर एंड सॉन्ग एंथम सुनने के बाद फिर उनको ही फील्स कि नाउ आई विल चेंज माई सेल्फ, अभी आई विल स्टार्ट वर्किंग वेरी हार्ड. ओके. सोपी फेसेस द आयरनी ऑफ फेट. आयरनी ऑफ फेट मीन्स पूरा जो सोचा उसके बराबर उल्टा ही हो जाता है वो. एज द मोमेंट ही रियलाइजेस द रियल फ्रीडम lies in a virtuous life, he is taken into confinement. तो पूरा चैप्टर में वो यही ट्राई करता है, एटलीस्ट इन दिस चैप्टर ट्राई करता है कि डिफरेंट वेज कि कैसे पुलिस उसको पकड़ के ले जाए. और लास्ट में फिर वो डिसाइड करता है कि नहीं अभी बहुत हुआ, अभी मैं कुछ काम करूंगा, सिंसियरली काम करके आई विल अर्न मनी. और तब एग्जैक्टली वही टाइम पे पुलिस आके उसको ले जाती है. ओके, सो दैट इज द स्टोरी. The Cop and the Anthem. Soapy left his bench and strolled out of the square and across the level sea of asphalt where Broadway and Fifth Avenue flow together. Up Broadway he turned and stopped at a luxurious cafe. So he was just waiting. सोच रहे थे कि कुछ तो मैं करूं. Asphalt यहाँ means डांबर. Okay. टार मैंने लिखा है. फिर उन्होंने क्या कि जहाँ पे बैठा था वहां से उठ गया एंड स्ट्रोल करना मीन्स आराम से लीजरली चलना. फिर वो पहुंच गया एक कैफे के सामने, वेरी पॉश.
जैसे कैफे कॉफी डे ना, सो कैफे इज अ प्लेस जहाँ पे यू कैन सिट एंड हैव कॉफी एंड ऑल, दैट्स कॉल्ड अ कैफे. Soapy had confidence in himself from the lowest button of his vest upward. यानी उन्होंने जो ड्रेस पहना था उसमें जो कोट था वो बहुत अच्छा था. ओके, एंड बाल बिल सब नीटली कोम किया था उसने. तो जब हम लोग टेबल पर अगर खाने पे अगर बैठते हैं टेबल पे, तो देन जो निचला हिस्सा होता है वो नहीं दिखाई देता है. ऊपर से अगर बाल ठीक से कोम किया है, अच्छा सा शर्ट है, कोट है, एंड ही हैज वोन पूरा शेवन फेस, so then he feels at least only उतना ही दिखाई देगा ना सबको. So he was looking very smart only halfway up. He was shaven and his coat was trim and neat black bow had been presented to him by a lady missionary on Thanksgiving Day. किसी ने उसको डोनेट किया था, उसको एक ना अच्छा सा ब्लैक बो दिया था. फिर वो सब पहन के वो तैयार हो गया और गया है कैफे के सामने. If only he could reach a table in the restaurant unsuspected, success would be his. मीन अगर उसको किसी ने अगर रोका नहीं, अनसस्पेक्टेड मीन्स कोई कुछ डाउट नहीं किया, तो वो चुपचाप अंदर जाके बैठ जाता. The portion of him that would show above the table would raise no doubt in the waiter's mind. तो अगर वो चुपचाप जाके, अगर किसी ने नोटिस नहीं किया, वो जाके अपना एक टेबल लेके बैठ गया चुपचाप, सो अगर कोई वेटर आ भी जाता तो उसको लाइक ही वुड लुक लाइक अ वेरी डिसेंट मैन जिसके पॉकेट में बहुत सारे पैसे हैं और वो इस कैफे का जो बिल होगा वो पे कर सकता है. सो कोई वेटर भी उसको ऑब्जेक्ट नहीं करता. नो वुड रेस नो डाउट. अ रोस्टेड मलाड डक, थॉट सोपी, वुड बी अबाउट द थिंग विद अ बॉटल ऑफ वाइन एंड देन सम चीज, अ कप ऑफ कॉफी एंड अ सिगार. सो उसने ऑलरेडी प्लान किया था कि मैं अंदर जाके बैठूंगा, फिर मैं एक वाइल्ड डक ऑर्डर करूंगा, उसके साथ थोड़ा सा वाइन, सम चीज, कॉफी एंड अ सिगार, सिगरेट जैसे होता है ना सिगार, ये सब प्लानिंग करके. तो सोचा कि $1 फॉर द सिगार वुड बी इनफ. $1 में एक सिगार आ जाएगी. द टोटल वुड नॉट बी सो हाई सो एज टू the total would not be so high as to call forth any extreme of revenge from the cafe management, and yet the meat would leave him filled and happy for the journey to his winter island. So he's saying that इतना सब खाने के बाद उसके पास पैसे तो नहीं है, तो उसने क्या सोचा कि अगर मैं अंदर जाऊं और ये सब ऑर्डर करूं, उसके पास कम पैसे थे, तो इन दी एंड कैफे मैनेजमेंट क्या करेंगे, उन लोग पुलिस को बुला लेंगे, कि इसके पास पैसे नहीं है, इसको ले जाओ. तो यही सोच के उसने बोला तब तक एटलीस्ट उसका जो जर्नी है, विंटर आइलैंड इज द प्लेस जहाँ पे जेल है, तो बोलते वहां तक जाने के लिए एटलीस्ट उसके पास खाना तो मिल गया, उसका पेट तो भर गया. द मीट वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी. तो पुलिस आके उसको ले जाएंगे, मीन्स इतना सारा खाएगा, वो एंजॉय करेगा, लेकिन वो पैसे नहीं देगा, देन द पुलिस विल कम एंड टेक हिम. सो ये सब प्लानिंग करके वो पहुंचा रेस्टोरेंट के डोर पर. But as Soapy set foot inside the restaurant door, the head waiter's eye fell upon his tattered trousers and the decadent shoes, means old worn out shoes. वो जो वेटर वहीं पे खड़ा था, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो वेटर ने देखा इसके ट्राउजर्स तो पूरे टैटर्ड है, पूरे फटे हुए हैं, शूज भी बहुत गंदा है, ओल्ड है. उन्होंने क्या किया, सीधा स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न्ड हिम अबाउट. उन लोग आए, उसको सीधा पकड़ लिया. ओके, एंड कन्वेड हिम इन साइलेंस. कन्वे मीन्स उसको बिना कुछ बात के सिर्फ इशारों से बोला कि चलो निकलो अभी यहाँ से. एंड हेस्ट टू दी साइड वॉक, उसको साइड वॉक बाहर का जो फुटपाथ है वहां तक ले गया. एंड एवर्टेड द इग्नोबल फेट ऑफ द मिनिस्ट. और वो उसने जो जो प्लान किया था वो पूरा उसका वो उन्होंने दे स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग इट. ओके, वो पूरा प्लान चौपट हो गया. Now, Soapy turned off Broadway. It seemed that his route to the coveted island was not to be an easy one. Some other way of entering the limbo must be devised. तो बोला ये रास्ता मुझे अभी कुछ सोचना पड़ेगा. It's not easy. ये जो आइलैंड मुझे जाना है, आइलैंड है ना जो जेल में जाना है, सो वो इजी रास्ता नहीं होगा, तो मुझे अभी कुछ तो सोचना ही पड़ेगा. ओके, वहां पहुंचने के लिए. At a corner of 6th Avenue is a road, okay? Electric lights and cunningly displayed wares behind plate glass made a shop window attractive.
वो जैसे वो रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक दुकान के बाहर पूरा इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया था उनका जो भी सामान था, चीज़ें थी ग्लास के पीछे, यू नो, एंड वो पूरा विंडो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। फिर इसको एक आइडिया आ गई, उसने क्या किया, एक पत्थर उठाया, ही टुक अ स्टोन एंड डैश्ड इट थ्रू द ग्लास। सीधा उसने पत्थर उठाया और फेंक दिया ग्लास की तरफ। पीपल केम रनिंग राउंड द कॉर्नर, सब लोग आगे भाग के, एक पुलिसमैन भी आ गया। सोपी स्टूड स्टिल with his hands in his pockets and smiled at the sight of brass buttons. Brass buttons means पुलिस का जो यूनिफॉर्म का जो बटन्स होते हैं वो ब्रास के होते हैं ना। तो सोपी वहां से हिला नहीं, वो चुपचाप वहीं पे खड़ा था। क्यों खड़ा था? क्योंकि उसको, वो तो राह ही देख रहा था कि कब पुलिस है उसको ले जाए पकड़ के। Where is the man that done that? Inquired the officer agitatedly. पुलिस ऑफिसर भड़क के बोलते, कहाँ है वो आदमी जिसने ये किया? फिर सोपी बोला, डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विथ इट, सेड सोपी विथ अ फ्रेंडली वॉइस एज वन ग्रीट्स गुड फॉर्चून। जैसे किसी को अच्छा नया यू नो गुड फॉर्चून मिल जाता है, लॉटरी लग जाती है, वैसे सोपी बहुत खुश हो गया और बोला कि आपको ऐसे नहीं लगता कि मैं शायद वो आदमी हो सकता हूँ, कि मैंने कुछ किया होगा, आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विथ इट। द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज अ क्लू। ओके, उन्होंने थोड़ा भी डाउट भी नहीं आया कि ये सोपी ने किया होगा। तो पुलिस ने क्या कहा कि men who smash windows do not remain to chat with the police, they take to their heels। मीन्स जिसने ये काम किया है वो थोड़ी वहां पे रुकने वाला है पुलिस के साथ चैट करने के लिए, वो तो सीधा भाग जाएंगे। टेक टू द हील्स मीन्स जगह से भाग जाना, रन अवे। द पुलिसमैन सॉ अ मैन हाफ वे डाउन द ब्लॉक रनिंग टू कैच अ कार। उतने में पुलिस ने देखा कि एक आदमी भाग रहा था एक यू नो कार पकड़ने के लिए। तो इनको लगा शायद वही आदमी होगा जिसने इधर पत्थर फेंक के भाग गया। तो विथ द ड्रॉन क्लब ही जॉइंड इन द परस्यूट। सोपी विथ डिस्गस्ट इन हिज हार्ट ड्रिफ्टेड अलोंग ट्वाइस अनसक्सेसफुल। तो पुलिस गए उस आदमी के पीछे और सोपी हो गया डिस्गस्टेड। मीन्स क्या मीन्स सेकेंड चांस भी उसका गया। फर्स्ट चांस हुआ रेस्टोरेंट में, अभी ये सेकेंड टाइम भी उसका चांस, इट वॉज अनसक्सेसफुल। On the opposite side of the street was a restaurant of no great pretensions. Means एक और एक रेस्टोरेंट उसने सामने दिखा, वो इतना कुछ खास नहीं था, not very something to be proud of. It catered to large appetites and modest purses. Modest purse means उसके जो दाम थे वो बहुत मामूली था, जो मेन्यू कार्ड था उसका जो चार्जेस थे खाने का वो बहुत मामूली था, बट उनका लाइक कम पैसे में ज़्यादा खाना मिल जाता था। ओके, सो जिन लोगों का जैसे उनको जो यू नो दे नीड टू ईट मोर एट द सेम टाइम यू हैव टू पे लेस, तो ऐसे लोगों के लिए ये होटल था। अभी उसका जो क्रॉकरी था, द कप्स एंड सॉसेस एंड प्लेट्स एंड ऑल, atmosphere was means it was all like so not very good. Okay, atmosphere, the crockery and the atmosphere were thick, the soup and the napery thin. मीन्स क्रॉकरी को उन्होंने बहुत थिक बनाया था एंड जो सूप देते थे वो पतला पानी जैसा देते थे, और जो नेपरी मीन्स वो जो टेबल पे जो कवर सब डालते हैं वो सब ठीक नहीं था। नैपकिन्स, यू नो, टेबल लिनन, आई हैव रिटन हियर। इनटू दिस प्लेस सोपी बीटुक हिमसेल्फ विदाउट चैलेंज। सोपी ने सोचा चलो मैं इधर ही खुद को, बीटुक हिमसेल्फ मीन्स वो खुद गया अंदर सीधा। एट अ टेबल ही सैट एंड कंज्यूम्ड। फिर उसने क्या क्या लिया, बीफ स्टीक, flapjacks is an English word, ये जो हिंदी में हम लोग मालपुआ बोलते हैं, it's a sweet item, donuts, pie, and then he told the waiter the fact that the minutest coin and himself were total strangers। यानी उसने बोला जो कॉइन होता है, जो सबसे छोटा डिनोमिनेशन है, वो और मैं, हम दोनों टोटल एक दूसरे को जानते ही नहीं, यानी दूर दूर तक, लाइक मेरे पास पैसे नहीं है। इन शॉर्ट वो कहना चाहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं, इतना सब खाने के बाद। ओके, एंड देन फिर सोपी बोलता है डू वन थिंग नाउ, गेट बिजी, कॉल अ कॉप, सेड सोपी, एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग। बोलते मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जाओ जाके पुलिस को यू नो ले आओ, बुलाओ। नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर with a voice like butter cakes and an eye like the cherry in the Manhattan cocktail. Hey, con means con is like somebody जो तुमको यू नो चीट करता है। ओके, सो वेटर भड़क गया, बोलते है तुम्हारे लिए तो कॉप की क्या जरूरत है। उसने सीधा इसको
पकड़ लिया और बाहर जाके सीधा वो जो पेमेंट पे फेंक दिया उसको. So neatly upon his left ear on the callous pavement, very hard pavement, 2 waiters pitched Soapy. 2 waiters आए, उसको पकड़ लिया और जाके बाहर उसको सीधा फेंक दिया. तो वो सीधा जाके गिरा अपने लेफ्ट कान पे, लेफ्ट ईयर पे. ओके. He arose, joint by joint. इस कितना बेशरम आदमी है ना ये. What did he do? जैसे कारपेंटर का रूलर थोड़ा करके हम लोग खोलते हैं ना, फोल्ड किया हुआ रूलर को खोलते, वैसे ये उठा. ओके. जॉइंट बाय जॉइंट एंड देन अपने क्लोथ्स को डस्ट करने लगा. जो धूल जमी थी उसमें वो निकालने लगा. अरेस्ट सीम नाउ बट एन इल्यूसिव ड्रीम. अभी इसको लगा कि जो अरेस्ट होने के तो चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं, वो तो अभी जैसे ड्रीम है. द आइलैंड सीम वेरी फार अवे. A policeman who stood before a drugstore 2 doors away laughed and walked down the street. एक पुलिसमैन उधर दूर खड़े रह के देख रहा था इसको, फिर वो हंसा और वो निकल गया. Soapy was seized with a sudden fear that some dreadful enchantment had rendered him immune to arrest. तो he said that ये कौन सा जादू है मेरे ऊपर कि कोई मुझे अरेस्ट ही नहीं कर रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ. He was in a state of panic. And when he came upon another policeman lounging grandly in front of a glittering theatre, फिर उसने देखा हाँ एक पुलिसमैन सामने खड़ा है, तो सोचा चलो अभी मैं कुछ तो करूँ. He caught at the immediate straw of disorderly conduct. तो he felt that if he shouted or screamed he would be arrested. तो उसने सोचा चलो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे बस चिल्ला चिल्ली करता हूँ तो वो आके मुझे पकड़ लेगा. On the sidewalk, Soapy began to yell drunken gibberish at the top of his harsh voice. पीने के बाद जो मीनिंगलेस टॉक होता है, बकबक करने लगा जोर जोर से. तो and danced, howled, raved and otherwise disturbed the skies. बहुत सबको डिस्टर्ब कर रहा था. The policeman merely twirled his club, turned his back to Soapy and remarked to a citizen. उतने में बाजू में एक सिटीजन है ना, कोई आदमी जा रहा था, तो पुलिसमैन ने उसको देख के कहा कि जाने दो, ये बच्चे ना इन लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड दे आर वेरी हार्मलेस पीपल. दिस वन ऑफ देम येल लैड्स मीन बच्चे जो कॉलेज के बच्चे होते हैं. ही सेलिब्रेटिंग द गूस एग दे गिव टू दी हार्ट फॉर. मीन बोलते हैं कि वहाँ पे कॉलेज में उनको कुछ जैसे एग्स या कुछ पार्टी हुआ होगा तो वो सेलिब्रेट कर रहा है. वो नॉइजी है लेकिन हार्मलेस है, मुझे कुछ करेगा नहीं, सिर्फ इन लोग आवाज करते हैं. एंड वी हैव इंस्ट्रक्शंस टू लेट देम बी. यानी हमारे जो सीनियर्स ने हमको बताया कि इनको छोड़ दो, मीन्स उनको अरेस्ट मत करना. सो वी हैव इंस्ट्रक्शंस टू लेट देम बी, मीन्स टू जस्ट लीव देम. ओके. Disconsolate is very unhappy. अभी he became very unhappy. He was feeling very bad कि क्या हो रहा है. Soapy stopped this unavailing racket. Would never a policeman lay hands on him? मीन्स क्या ऐसा होगा ही नहीं कि मीन्स कोई पुलिसमैन आएगा और उसको ले जाएगा. इन हिज फैंसी द आइलैंड सीम्ड एन अनअटेनेबल आर्केडिया. इट्स लाइक अ पैराडाइज, अ प्लेस जहाँ पे बहुत मुश्किल है अंदर जाना, मीन्स वो जेल. ही बटन्ड हिज थिन कोट अगेंस्ट द चिलिंग विंड. बहुत ठंड थी तो उसने अपने पहले तो एक जो कोट पहना था वो पतला सा था, तो उसका पहले तो पूरा बटन लगा दिया उसने. फिर गया एक सिगार के स्टोर पे. इन अ सिगार स्टोर ही सॉ अ वेल ड्रेस्ड मैन lighting a cigar at the swinging light. He had set a silk umbrella by the door on entering. तो he saw a well dressed, एक अच्छा सा ड्रेस किया हुआ आदमी था एंड उसने वो कोने में एक अम्ब्रेला था पड़ा था. ओके. तो हाँ उस आदमी ने वो अम्ब्रेला को वहां पे रखा और ये सोपी ने देखा. तो सोपी ने क्या किया? सोपी stepped inside, grabbed the umbrella and sauntered off with it slowly. सोपी अंदर गया, सीधा वो अम्ब्रेला ले लिया और बाहर निकला. तो दिस मैन फॉलोड हिम. ओके. वो आदमी उसके पीछे पीछे. बोला माई अम्ब्रेला, ही सेड. ओ इज इट, स्नियर्ड सोपी, एडिंग इंसल्ट टू पेटी like theft, larceny. Well, why don't you call a policeman? I took it, your umbrella. Why don't you call a cop? There stands one on the corner. बोलते देखो अभी मैंने तुम्हारा एक अम्ब्रेला चोरी किया ना, तो आप एक काम करो, सामने देखो पुलिस खड़ा है कोने में, उसको बुला लो. The umbrella owner slowed his steps. अम्ब्रेला जो ओनर था वो स्लो हो गया, जो पहले भागवा के आ रहा था नीचे. ओके. वो रुक गया.
Soapy did likewise, with the premonition that luck would again run against him. सोपी को लगा बस अभी, क्योंकि ये आदमी भी उसका स्टेप स्लो कर दिया, तो सोपी थॉट प्रेमोनिशन इज एक, जैसे मुझे पता है कि ये अभी नहीं होने वाला है, इंट्यूशन एंड प्रेमोनिशन होता है, ओके, टू स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ये टाइम भी मुझे लक मेरा साथ नहीं देने वाला है। पुलिसमैन दोनों को देख रहे थे। उतने में अम्ब्रेला मैन ने क्या कहा, ऑफ कोर्स सेड द अम्ब्रेला मैन, वेल यू नो हाउ दीज मिस्टेक्स अकर, इफ इट्स योर अम्ब्रेला आई होप यू विल एक्सक्यूज मी, I picked it up this morning in a restaurant. If you recognize it as yours, why I hope you will see. That means क्या हुआ, सुबह अम्ब्रेला मैन मीन जिस आदमी का वो अम्ब्रेला था, वो कोई होटल में जाके जब बैठा तो उधर उसने ये अम्ब्रेला देखा था और उसने सीधा उठाया था, यानी उसका खुद का नहीं था, उसने भी किसी और का उठाया था। तो अभी इनको लगा कि ये शायद सोपी का होगा, इसलिए सोपी ने ले लिया। तो बोलते कि अच्छा ठीक है, ये आपका है क्या, अगर आपने इसको रिकॉग्नाइज किया तो आप ले लो। मीन्स यहाँ पे भी सोपी का काम नहीं हुआ। सॉरी, ऑफ कोर्स इट्स माइन सेड सोपी savagely. The ex umbrella man, ex umbrella means पहले अम्ब्रेला उसका था, अभी ये सोपी का हो गया, तो ये हो गया एक्स अम्ब्रेला मैन, ओके, रिट्रीटेड, गया वो उल्टा। द पुलिसमैन hurried to assist a tall blonde in an opera cloak across the street in front of a streetcar that was approaching 2 blocks away. Tall blonde means a beautiful one person was there. So policeman गया उसको assist करने के लिए, कुछ help करने के लिए. Soapy walked eastward through a street damaged by improvements. सब काम चल रहा था, तो Soapy started walking. He hauled the umbrella. वो इतना भड़क गया कि उसने सीधा अम्ब्रेला को उधर जो एक कुछ खुदाई का कुछ काम चल रहा था उसी में फेंक दिया। He hauled the umbrella angrily into an excavation. He muttered against the men who wear helmets and carry clubs. Muttered against means वो जो लोग मीन्स पुलिसमैन के बारे में बात कर रहे हैं कि पुलिसमैन हु वेयर हेलमेट्स एंड कैरी, तो उनके अगेंस्ट में वो बात कर रहे थे। बिकॉज ही वॉन्टेड टू फॉल इन टू देयर क्लचेस, दे सीम टू रिगार्ड हिम एज अ किंग हु कुड डू नथिंग रॉन्ग। तो सोपी वसलिंग कि ये पुलिस मुझे एक राजा जैसे क्यों भी ट्रीट कर रहे हैं, कि जैसे मैं कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, यू नो, कि मुझे उनके क्लचेस में उनके चंगुल में फंसना है, लेकिन वो मुझे बिल्कुल वैसे ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो he was getting angry. Soapy was getting very angry. At length, Soapy reached one of the avenues to the east, where the glitter and turmoil was but faint. Means slowly वो गया, you know, दूर अपने चलते रहा वो। He dragged himself towards Madison Square, for the homing instinct survives even when the home is a park bench. यानी जैसे हम लोग कहीं अगर दूर जाते हैं, फिर वापस जब हमारे घर के तरफ आते हैं तो एक अलग सा फीलिंग होता है कि चलो घर पहुंच गए, यू नो। सो सिमिलरली जब ये एक पार्क का जो बेंच के तरफ गया तो उसको एक होमिंग इंस्टिंक्ट होता है ना, यू फील नाइस ना, कि चलो एट लास्ट यहाँ तक तो पहुंच गए। सो क्योंकि इसका घर क्या था, जस्ट अ बेंच, ही वॉज अ होमलेस पर्सन, उसका कोई घर नहीं था। तो जैसे वो वहां पहुंचा तो बोला चलो, मीन्स हो गया, लाइक ही वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन एटलीस्ट पहुंच गया वहां पे, तो बैठ गया उसके ऊपर, ओके। बट ऑन एन अनयूजुअली क्वाइट कॉर्नर, सोपी केम टू अ स्टैंड स्टिल. Here was an old church, quaint and rambling and gabled, you know, very old-fashioned. Through one violet-stained window, a soft light glowed, where, no doubt, the organist loitered over the keys, making sure of his mastery of the coming Sabbath anthem. Sabbath is like some religious function, so there was a song to be played on that day. So from, you know, outside the church he was listening. The Soapy was standing outside the church and he could you know, hear. He knew that there was this organist, you know, the person playing a piano, and he was playing this anthem. For there drifted out to Soapy's ears sweet music that caught and held him transfixed against the convolutions of the iron fence. Convolutions are this. So when he was sitting there and listening to this music, slowly he started
feeling that I think, why am I looking forward to going to a jail, so he started thinking against all this. He said, I think I should change myself now. That anthem was slowly, he was trying to understand and listen to it, the sweet music going into his ears. The moon was above, means it was late in the evening, full and radiant, full moon day. Vehicles and pedestrians were few. There were very few vehicles on the road and few pedestrians. जो पैदल चलते हैं उनको pedestrians बोलते हैं. Sparrows twittered sleepily in the eaves. Eaves means वो जो nest बनाते हैं जैसे छत पे इधर कोने कोने में से, तो that is eaves. Okay. Sparrows, वहाँ पे sparrows means जो छोटे birds होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, I don't know. मराठी में चिमनी बोलते हैं. Okay. चिड़िया, छोटी चिड़िया. Then while the scene might have been a country churchyard, and the anthem that the organist played cemented Soapy to the iron fence, for he had known it well in the days when his life contained such things as mothers and roses and ambitions and friends and immaculate thoughts and collars. Means जो आयरन फेंस है, फेंस इज लाइक अ बाउंड्री जो होता है हर बिल्डिंग के आजू बाजू में, तो वहीं पे खड़ा था. एंड देन उसको ये म्यूजिक सुनते सुनते जो एंथम सुन रहा था वो एक ही जगह पे जैसे सीमेंट से सीमेंटेड हो गया, लेकिन जस्ट वहीं पे रुक गया. एंड देन वो पूरा सोचने लगा अपने लाइफ के बारे में. मम्मी है, जैसे रोजेस मिलते थे बचपन में, देन कितने एम्बिशन थे उसके, कितने सारे फ्रेंड्स थे, सब थॉट्स आने लगे उसको. The conjunction of Soapy's receptive state of mind and the influences about the old church brought a sudden and wonderful change in his soul. उसको उसका बचपन याद आ गया कि ये इस चर्च में इन लोग सब लोग साथ में जाते थे वहाँ पे, तो रोजेस एक्सचेंज करते थे, लोगों से मिलते थे, बहुत सारे फ्रेंड्स थे. So all that slowly started bringing a sudden change, a wonderful change in his soul, आत्मा. He viewed with rising horror the pit into which he had tumbled. Means वो सोच रहा था कि मैं कैसे ये जो पिट है जो बड़ा सा खड्डा है, मैं उसमें कैसे गिर गया. मैं कैसे यहाँ पहुंचा. Means मैं क्या था और मैं क्या हो गया आज. The degraded days, the unworthy desires, dead hopes, wrecked faculties and base motives that had made up his existence. Means आज उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था. ऑल टोटली ही वॉज अ वेरी नेगेटिव पर्सन. कुछ नहीं कर रहा था, टोटली डिग्रेडेड, अनवर्दी डिजायर्स. मीन डिजायर्स थे वो भी जिनका कोई वर्थ ही नहीं है, वर्थलेस, अनवर्दी. होप्स ऑल डेड. सिजलिंग मैं मीन्स ये हालत मेरी कैसे हो गई, मैं ऐसे कैसे पहुंच गया. एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट रिस्पॉन्डेड थ्रिलिंगली टू द स्ट्रेंज मूड. अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव्ड हिम moved him to battle with his desperate fate. Means he felt इतना, उसका कंडीशन इतना बैड कैसे हुआ. मीन्स उसने खुद का क्या कर दिया था उसकी जिंदगी का. ओके. He would pull himself out of the mire. Mire is a complicated, unpleasant situation from which it is difficult to free oneself. Means उसने खुद को इतने सिचुएशन में ऐसे डाला था कि अभी उसमें से निकलना इजी नहीं था. बट ही डिसाइडेड कि अभी आई विल पुल माई सेल्फ आउट. मैं इसमें से डेफिनेटली बाहर निकलूंगा. एंड आई वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन. ही डिसाइडेड कि अभी मैं आई विल चेंज माई सेल्फ. आई विल डू समथिंग. आई विल वर्क हार्ड. ओके. ही वुड कॉन्कर द इविल दैट हैड एनस्लेव्ड हिम. सो जो भी नेगेटिविटी था उसके आगे, मीन्स उसने सोचा कि अभी मैं इसमें से सब बाहर निकलूंगा. आई विल कॉन्कर इट. There was time. He was young yet. Means बहुत टाइम था, क्योंकि अभी भी वो बहुत यंग था. He would resurrect his old eager ambitions, resurrect his to restore to life. Means उसके जो पहले ambitions थे उसको अभी वो दोबारा उसको pursue करेगा ambitions को. And pursue them without faltering. Means अभी I will not lose strength. अभी मैं पूरे जोश से वापस अपनी जिंदगी को संवारूंगा. Like
Those solemn but sweet organ notes had set up a revolution in him. वो जो एंथम सुनने के बाद उसमें एक टोटल चेंज आ गई उसमें. Okay. Then he decided tomorrow he would go into the roaring downtown district and find work. He decided the next day I will go to that to some the town side and get work. A fur importer had once offered him a place as a driver. जो फर इंपोर्ट करते हैं, फर इज एनिमल का जो स्किन होता है ना, उसको फर बोलते हैं, राइट. अ फर इंपोर्टर था जो उसको एक बार ड्राइवर का नौकरी देने के लिए तैयार था. ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, ही वुड. तो बोलते अभी तो डेफिनेटली आई थिंक आई विल गो एंड गेट दिस जॉब नाउ. बस सोच ही रहा था उतने में क्या होता है. ही फेल्ट अ हैंड लेड एंड ऑन आर्म, मीन्स किसी ने उसके हाथ को छुआ, टच किया उसको. He looked quickly around into the impassive face of a policeman. टर्न करके देखा तो किसका हाथ था वो? पुलिसमैन का. What are you doing here? Asked the officer. क्या कर रहे तुम इधर? तो सोपी said nothing. कुछ नहीं. तो बोलते चलो फिर. Said the policeman. 3 months on the island. बोलो चलो 3 महीने अंदर जेल में. Said the magistrate in the police court the next morning. See, the last part is very touchy. Means जब उसमें से पहले तो उसको खुद जाना था, लेकिन फिर एक टाइम आ गया जब उसने एंथम सुनने के बाद ही फेल्ट कि अभी आई विल चेंज माई सेल्फ. और जब वो टाइम आया तभी पुलिस आके उसको 3 महीने के लिए अंदर ले गया. यानी जहाँ से वो निकलना चाहता था फिर वहीं पे वो फंस गया. सो ओ हेनरीज बुक्स आर एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. इफ यू रीड हिज स्टोरीज, नो, ऑल देयर्स अ ट्विस्ट. वेरी नाइस स्टोरी. So we'll do the brainstorming in the next video, okay? Thank you. Enjoy reading.